Hello students, this is official sample paper of session 2021 of CBSE class 10th basic mathematics. From now onwards the paper will be divided into two parts, part A and part B. Part A consists of two sections, section 1 and section 2. Section 1 consists of 16 questions of 1 mark each, and section 2 we will have case study questions. So let's start with section A first. Part A, Section 1. This is question number 1. Express 156 as the product of primes. 156 को हमें product of primes की form में लिखना है. Simply factorize this. 2. This is 7, 8, 2, 3, 9, 3, 13, 13, 1. So prime factors of 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. Right. Now second question is, write a quadratic polynomial sum of whose zeros is 2 and product is -8. हमें quadratic polynomial लिखनी है जिसका sum of the roots या zeros कह सकते हैं और product of the roots और zeros हमें given है. We know that quadratic polynomial is given by p of x is equal to x square minus sum of the roots or zeros into x plus product of zeros. Right. Sum of the roots is given as 2 and product of the zeros is -8. So required polynomial is x square minus 2x minus 8. Third question says that given that HCF of 96 and 404 is 4, we have to find the LCM. आपको दो नंबर्स 96 और 404 का HCF गिवन है, वो 4 है, हमें LCM फाइंड करना है. We know that for any two positive integers, A and B, HCF of AB into LCM of AB is equal to product of numbers. HCF हमें गिवन है 4, LCM हमें फाइंड करना है और नंबर्स हैं 96 and 404. So LCM is equal to 96 into 404 over 4, that is 96. This is the required LCM. Now there is a choice in question number 3. State the fundamental theorem of arithmetic. So fundamental theorem of arithmetic says fundamental theorem of arithmetic says every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique, apart from the order in which the prime factors occur.
तो वो कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। अब जो ऑर्डर होगा उन प्राइम नंबर्स का वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसके फैक्टर्स होंगे या जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो उसमें प्राइम नंबर्स यूज हो रहे होंगे वो हमेशा यूनिक होगा। सपोज देयर इज अ composite number say 42. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हों, एक 1 फैक्टर हो, दूसरा वो नंबर खुद से डिवाइड हो सकता हो, और तीसरा एक कोई और नंबर उसे डिवाइड कर दे। कम से कम, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है 3 से ज़्यादा। से 42 आपका एक हम कह सकते हैं कि 42 आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं 7 1। सो 42 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 7। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 7 प्राइम है, बट इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। इसको 3 × 2 × 7 लिख सकते हैं या 7 × 2 × 3 लिख सकते हैं। सो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, on comparing the ratios of the coefficients, find out whether the pair of equations x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equal to 0 is consistent or inconsistent. We have to find कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इक्वेशन से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे a1, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1 और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3। b1 इज -2, सिमिलरली b1 -2, b2 इज इक्वल टू 4। हम साइन के साथ लिखेंगे, b1 -2 होगा, ठीक है। नाउ c1 इज 0, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, और c2 इज -20। तो हम रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन a2 is 1/3, b1 upon b2 is -2/4 is -1/2, and c1 upon c2 is equal to 0 minus 20 is equal to 0. So since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore pair of linear equations इज कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट होगी। इट इज अ कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 says if a and b are co-prime numbers then find the HCF of a and b। a and b अगर co-prime numbers हैं तो हमें HCF मालूम करना है उन दोनों नंबर्स का। तो हमें ये मालूम है कि we know that the HCF of two co-prime numbers is always 1। हमेशा क्या होगा? 1 होगा। मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए कि 3 और 7 दो प्राइम नंबर्स हैं, 3 और 7। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 × 3। 7 को कैसे लिख सकते हैं? 1 × 7। तो आप देखेंगे इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है। सिमिलरली आप ले लीजिए 5 और 11। 5 को कैसे लिख सकते हैं? 1 × 5। 11 इज 1 × 11। तो 5 और 11 प्राइम नंबर्स हैं और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1।
So the HCF of two co-prime numbers is always 1. Question number 6. Find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree. ये एक सर्किल है, इसका कोई पर्टिकुलर सेक्टर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे, ठीक है। तो हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मीन्स जो एंगल वो सेंटर पे बना रहा है 60 डिग्री, 360 इंटू पाई, रेडियस इज गिवन एज 6 स्क्वायर, ठीक है। 60 ओवर 360 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6, सो इट इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 10, दिस इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा आप उसका यूनिट जरूर लिखिएगा आगे, चाहे लेंथ हो, एरिया हो, और जो भी मीटर है, सेंटीमीटर है, यूनिट जरूर लिखिएगा। Now question number, there is a choice in question number 6. A horse tied on a pole with 28 meter long rope. Find the perimeter of the field where the horse can graze. एक हॉर्स है, ये एक पोल से बंधा हुआ है, और जिस रोप से वो ये हॉर्स है मान लीजिए, अब ये जिस रोप से बंधा हुआ है और ये पोल है, ठीक है, जिस रोप से ये बंधा हुआ है ये 28 मीटर की है। तो हमें पेरीमीटर मालूम करना है ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। अब जहां तक हॉर्स जो है वो जा सकता है, तो हॉर्स रोप बंधी है तो ये ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। आप देख रहे हैं पूरा सर्कुलर पाथ कवर कर सकता है। तो हमें सिंपली क्या फाइंड करना है कि पेरीमीटर ऑफ फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, circumference of circle, and it is equal to 2 pi r। रेडियस क्या है 28 मीटर, 2 इंटू पाई इंटू 28, पाई इज 22 पाई 7, दिस इज 176 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ गिवन फिगर DE is parallel to BC। एक फिगर है, ये ट्राइंगल है ABC जिसमें DE जो है वो पैरेलल है BC के। एंगल ADE गिवन है 70 डिग्री, और एंगल BAC ये गिवन है आपका 50, यहां लिख देती हूँ 50 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल BCA, ये एंगल फाइंड करना है, राइट। तो हमें क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADE जो ऊपर का छोटा ट्राइंगल बन रहा है उसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ADE प्लस एंगल DAE प्लस एंगल AED is equal to 180 degree, right? It is given 70 plus 50 plus angle AED is equal to 180 degree. So angle AED is 60 degree, right? Now since DE is parallel to BC, ये given है, ठीक है। So angle AED कितना किसके बराबर हो गया, AED जो हो जाएगा वो एंगल BCA के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
देयर इज अ चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्राइंगल है जिसमें आपको AD गिवन है, AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम करना है कि इस DE जो पैरेलल है BC के, क्या ये पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है? तो हमें क्या करना है, सिंपली रेशियो पता लगा लेंगे हम, AD अपॉन DB, AD अपॉन BD 2/3 और AE ओवर EC क्या हो गया, AE ओवर EC। AE गिवन है 3.5 और EC क्या है, पूरा AC माइनस AE, 7 माइनस 3.5, इट इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 3.5, इट इज 1। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों रेशियो जो है AD अपॉन DB इज नॉट इक्वल टू AE ओवर EC, सिंस AD अपॉन BD इज नॉट इक्वल टू AE ओवर EC, therefore D is not parallel to BC। अब हमने ये चीज कैसे कह दी, हमको एक थ्योरम मालूम है कि अगर इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड डिवाइड्स दैट दोज टू साइड्स इन द सेम रेशियो, then this line is parallel to the third side of the triangle, right? तो अब हमने देखा कि रेशियो इसके इक्वल है नहीं, वो सेम रेशियो में इसने इसको इंटरसेक्ट नहीं किया, दैट मीन्स DE जो है वो पैरेलल नहीं है BC के। सो क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a circular field at the rate of rupees 24 per meter is rupees 5280. Find the radius of the field। एक सर्कुलर फील्ड है जिसमें हमने यहाँ फेंसिंग की गई है और हमें गिवन है कि रुपीज 24 पर मीटर पे ये फेंसिंग करी गई है। टोटल जो हमें पैसे देने पड़े वो 5280 दिए। अब हम इससे ये मालूम कर सकते हैं कि कितनी लेंथ पे फेंसिंग हुई है। तो लेंथ अगर हम मालूम कर लेंगे तो वो लेंथ क्या होगी, सिंस इट इज सर्कुलर तो वो ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा सर्किल का, और हमें पूछा है रेडियस। जब सरकमफ्रेंस हम मालूम कर लेंगे तो हम सिंपली रेडियस इजीली निकाल सकते हैं। सी ₹24 इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, 1 मीटर। ठीक है, ₹1 यूनिटरी मेथड से इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कितने मीटर हो जाएगा, 1 रुपए में कितने मीटर फेंसिंग होगी, 1/24 मीटर। और ₹5280 में इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1/24 इंटू 5280 मीटर। ठीक है, एंड इसको सॉल्व करेंगे 220 मीटर। तो इतने मीटर हमने फेंसिंग करी तब हमें इतने पैसे देने पड़े। अब ये सर्कुलर फील्ड है तो ये सिंपली ये जो मीटर हो गया ये क्या हो गया, इसका सरकमफ्रेंस, सिंस इट इज सर्कुलर फील्ड देन circumference of field is equal to 220 मीटर, और circumference पता है हमें 2πr होता है। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 220। ये हो गया 220 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। रेडियस इज इक्वल टू 35 meter. So the radius of the field is 35 meter. So question number 9 says a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground
वेयर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक ट्री है जो कि स्टॉर्म की वजह से वो टूट गया है और टूटने के बाद जो उसका टॉप है वो ग्राउंड पे टच होता है, तो जहां पे वो ग्राउंड से टच हो रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो मान लीजिए एक ट्री है, ये इस पॉइंट से टूटा, तो जो ऊपर का हिस्सा है ट्री का वो आके ग्राउंड पे टच हुआ, तो हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये ट्री का फुट है और जहां पे वो ग्राउंड को टच कर रहा है वो 8 मीटर है। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन। हमें उस हाइट से जहां से वो टूटा है वो हाइट मालूम करनी है। मीन्स अल्टीमेटली हमें ये h मालूम करना है। ओ ए, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ओ ए एंड बी। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन ओ ए, राइट। So it is equal to h over 8 and tan 30 is 1 by root 3. So h is equal to 8 by root 3 meter. So the height of the tree from where it is broken is 8 by root 3 meter. Question number 10. If the perimeter and area of a circle are numerically equal, then find the radius of the circle. Given है perimeter of circle is equal to area of circle, ठीक है। perimeter is 2 pi r, area is pi r square, पाई से पाई कैंसिल हुआ और ये हो गया 2 is equal to r square by r, r से r is equal to 2 units। अब हमें यूनिट दी नहीं हुई है तो हम इसमें आगे लिख देंगे 2 units, ठीक है। Now 11 question, find the empirical relationship among mean, median and mode। ये हमने पढ़ रखा है। We know 3 median is mode plus 2 mean, ठीक है। अब in question number 12, to divide a line segment BC internally in the ratio 3.5, we draw a ray BX such that angle CBX is an acute angle। तो कह रहे हैं कि ये एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है BC और उसको इस रेशियो में डिवाइड करना है 3:5 में, 3:5 में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम एक रे बनाते हैं BX रे बनाते हैं such that angle CBX is an acute angle। CBX ये एक acute angle है। What will be the minimum number of points located at equal distances on ray BX, ठीक है। इस BX पे हम कितने पॉइंट्स हमें लोकेट करने होते हैं। तो हमें कंस्ट्रक्शन में पता है कि पहले हम एक रे बनाते हैं एक्यूट एंगल में। अगर हम m/n रेशियो में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो m + n इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता है। हेयर m/n क्या है, 3:5 में 3 + 5 इज इक्वल टू 8 इक्वल पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 says that for what values of p does the pair of equations 4x plus py plus 8 is equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 has unique solution। p की किस वैल्यू पे इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद ax plus by plus c is equal to 0, a1 is 4, कोफिशिएंट ऑफ x 4 इस इक्वेशन में, a2 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x 2, b1 is p and b2 is 2, कोफिशिएंट ऑफ y। so we know ये कंडीशन हमें मालूम है। we know for unique solution a1 upon a2 is not equal to p1 upon p2, sorry b1 upon b2, ठीक है। a1 upon a2 is not equal to b1 over b2। a1 upon a2 क्या हो गया, 4 upon 2 is not equal to p over 2, so 2 is not equal to p over 2
एंड p इज नॉट इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4. सो पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस will have unique solution at all real values of p except 4. What type of straight line will be represented by the system of equation 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus 6y is equal to 7. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म से ax प्लस by प्लस c से हम इन कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे ताकि राइट हैंड साइड हमारे 0 के इक्वल हो जाए. वी कैन रीराइट as 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 7 is equal to 0. So compare करेंगे a1 is 2, a2 is 4, b1 is 3, b2 is 6, c1 is minus 5, c2 is minus 7. a1 upon a2 is equal to 2 over 4 is 1 by 2. b1 upon b2 is 3 over 6 is 1 by 2. And c1 upon c2 is minus 5 over minus 7 is 5 by 7. So हम देख रहे हैं कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. a1 upon a2 1 by 2 है, b1 upon b2 1 by 2 है, but c1 upon c2 के इक्वल नहीं है. So these are the condition of parallel lines. Parallel lines की condition है ये, right? So these are the condition of parallel lines. So question number 40. A bag contains 3 red balls. Red balls जो है वो 3 हैं, black balls 5 हैं. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? एक बॉल जो है वो रैंडम निकाली गई है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो बॉल निकाली गई है वो रेड ही होगी. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल is equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes, possible outcomes. ठीक है, तो number of favorable outcomes to the event of getting a red ball. फेवरेबल क्या है, कितनी रेड बॉल्स हैं 3, और टोटल क्या हो गई 3 + 5. टोटल बॉल्स है 3 + 5, 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी. देयर इज अ चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 14. अ डाई इज थ्रोन वंस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. एक डाई है तो उस पे जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं. अब आप नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स कितने, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मीन्स कि वो नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हों, 1 या नंबर इटसेल्फ. तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर. सो देयर आर टोटल 3 प्राइम नंबर्स, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. प्राइम नंबर कितने 3 और टोटल कितने 6 आउटकम्स हो सकते हैं टोटल. तो इट इज 1/2. क्वेश्चन नंबर 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 says a tower stands vertically on the ground. एक टावर है जो कि सीधा खड़ा हुआ है ग्राउंड पे. ये एक टावर है, ठीक है. इसको आप नेम कर देते हैं A B. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी
ग्राउंड पे एक पॉइंट है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का ये फुट है, ठीक है, फुट ऑफ टावर। तो इस फुट ऑफ टावर से ये पॉइंट जो है वो 15 मीटर दूरी पर है, इसको ओ लिख देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर मीन्स जब इस पॉइंट से हम टॉप को देख रहे हैं, दिस इज टॉप ऑफ टावर, जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है, इस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। वो हमें गिवन है 60 डिग्री। तो हमें बेसिकली ये हाइट पता लगानी है, एच मालूम करना है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी tan 60 degree is equal to perpendicular over base AB over OB and it is equal to H over 15 and tan 60 is √3, H over 15, height is 15 √3 meter, right? Last question is question number 16. Probability of an event प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हमेशा 1 होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे 16 क्वेश्चंस थे सेक्शन 1 ऑफ पार्ट ए। मैं सेक्शन 2 जिसमें केस स्टडी क्वेश्चंस हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। फॉर दैट please do subscribe my channel to stay in touch with my upcoming video. Till then, take care, stay safe.